Guys, go through your last lecture notes. Any doubts? Last lecture notes? What was the last part? So racemic mixture of tartaric acid. Guys, here I have written Fisher prediction formulas of 3 compounds. If I ask you compound 1 and compound 2, about compound 1 and compound 2, can I say these are mirror images? Yes or no? These are mirror images or not? Compound 1 and 2. No. No, sir. सब लोग नो बोल रहे हैं. Compound 2 and 3. No. No. No, sir. No, sir. Very good. Compound 1 and 3. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Acha. Can I say compound 1 and 2 are non-superimposable? Yes, sir. Yes, Last sir. lecture I told you how to check superimposable. So second Compound- one is Compound 2 and 3 are superimposable or non-superimposable? Non-superimposable. Compound 1 and compound 3? superimposable. Super. Non-superimposable. ध्यान से देखो सब. Non-superimposable. Guys, whatever I asked you about these compounds, उसी के basis पे relationship एक लिखते हैं, एक term define करते हैं जिसको बोलते हैं enantiomers. enantiomer. और एक यहीं पर define करते हैं diastereomers. So first of all, we'll write the definitions. तो लिखेगा what are enantiomers? Two stereoisomers which are non-superimposable mirror images of each other. Non-superimposable mirror images of each other. The last line repeat कर सकते हो? पूरा ही repeat करता हूं मैं. Two stereoisomers which are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers. Each stereoisomer here is optically active. Optically active. Sir, each के बाद क्या था? Each stereoisomer here is optically active. Further you ठीक, write. sir. Enantiomers have identical physical properties.
like melting point, boiling point, etc. Like melting point, boiling point, etc. So they cannot be separated. They cannot be separated by physical methods. They cannot be separated by physical methods like recrystallization, distillation, etc. These are separated by method. Resolution. If you recall last lecture also, I wrote about resolution. सर रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद आपने क्या बोला? Cannot be separated by recrystallization, distillation, etc. These are separated by method resolution. Okay, now you write diastereomers, two stereoisomers, which are neither mirror images nor superimposable. Neither mirror images nor superimposable. Diastereomers have different physical properties. So can you repeat after mirror images? After what? After mirror image. मैंने क्या बोला है? They are neither mirror images nor superimposable. Okay, sir. Diastereomers have different physical properties. So they can be separated by physical methods. They can be separated by physical methods such as recrystallization, distillation, etc. Guys, one important point here is, like we said in enantiomers, each stereoisomer is optically active. And for diastereomers, it is not necessary. The stereoisomer in case of diastereomers can be optically active, can be optically inactive. Like even geometrical isomers are diastereomers. ये भी लिख लीजिएगा. Even geometrical isomers are diastereomers.
Guys, read these two definitions and just write for a relation for compound 1 and 2, compound 2 and 3, compound 1 and 3 quickly. सबने रिलेशंस लिख दिए? हाँ सर। हाँ सर। फर्स्ट एंड सेकंड का क्या था? Diastereomers. Diastereomers. What about second and third? Diastereomers. Diastereomers. First and third? Enantiomers. Chali. So now you are aware of the concept, and I think you will be able to find whether the two compounds are enantiomers, even identical हो सकता है अगर आप जैसे मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है OH OH H H CHO CH. Let us say this as compound 4 ले लेते हैं इसको, ठीक है, और एक दूसरा लिखते हैं OH OH H H CHO CHO, and let me write this as compound 5. So what about compound 4 and 5? What relation will you say? Enantiomers dash towards what? इधर होगा ना इसको। सर ये तो सुपर हाँ सर। Neither होगा sir. ये मिरर इमेजेस हैं क्या? यस सर। Yes, हाँ sir. sir. Yes sir. लेकिन क्या सुपर इम्पोजेबल है? यस यस सर। Yes, क्योंकि sir. घुमा Yes, दोगे तो sir. सुपर इम्पोज कर जाएगा, तो ना तो ये इसमें फॉल कर रहा है ना ये इसमें फॉल कर रहा है, ये एक्चुअली आइडेंटिकल है। ध्यान से देखोगे ये भी मेसो है, ये भी मेसो है, राइट? इसके पास भी देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये बेसिकली आइडेंटिकल कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बिलीव दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कॉपी कर लो आप। Have you copied everything? यस सर। हाँ सर। Guys, जरा एक बार 1 2 3 तीनों में रिलेशन बताओ। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3. Quick.
1 and 2 or 2 and 3 diastereomers or 1 and 3 enantiomers. वेरी गुड। सबको यही आया? Yes, sir. सबने चेक कर लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So 1 and 2 are diastereomers, right? So 1 और 3 identical कैसे होंगे? ये सब डिस्कशन करते हैं, टेंशन मत लीजिए। गाइस, अभी अनफॉर्चुनेटली ये जो सामने मैंने लिखा है ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा, राइट? अब प्रॉब्लम ये है कि हर बार अपने को इतना आसान नहीं होता ये आइडेंटिफाई करना डायरेक्टली देख करके कि वो मिरर इमेजेस हैं कि नहीं है, राइट? मिरर इमेजेस आप तभी पहचान पाओगे परफेक्ट मैनर में जब वो परफेक्ट फिशर प्रोजेक्शन दिया हो। जैसे इसको देखो, इसमें इफ यू सी, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन में आपको पूरा वो कार्बन चेन दिख रहा है क्या? इसमें वर्टिकल लाइन में वो कार्बन चेन दिख रहा है? नहीं। So it is not easy for you to directly judge whether the two are mirror images or not, right? अगर इसमें भी वर्टिकल लाइन में ही वो पूरा दिया होता कार्बन चेन तो आपके लिए आसान हो जाता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? इसमें भी देखो, वर्टिकल लाइन डज नॉट हैव द कार्बन चेन। Officially for Fisher projection the vertical line should have the carbon chain, या नहीं है। अगर वो हो जाएगा then you will be able to compare। तो ये जो मैंने सामने लिख दिया ना, enantiomers, identical enantiomers, तुम्हें ये सब डायस्टेरियोमर इस तरह से लग रहा था ज्यादातर, ठीक है? सो अगर मान लीजिए ऐसे टाइप में फिशर प्रोजेक्शन दिया है तो रिलेशंस कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है? अच्छा, एक चीज है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है 1 and 2 enantiomers, 1 and 2 enantiomers लिखा हुआ है। अगर मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो फर्स्ट वाला है ये डेक्स्ट्रो है और सेकंड वाला लेवो है, अगर मैं ये बोल दूं कि फर्स्ट वन इज डेक्स्ट्रो एंड सेकंड वन इज लेवो एंड सिंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, 1 and 2 डेफिनेटली विल बी enantiomers। सेकंड थिंग, अगर मैं ये बोल दूं कि फर्स्ट वन इज डेक्स्ट्रो, third one is also dextro, and since molecular formula same, I'll say identical। क्या पॉइंट मेरा समझ पा रहे हो? तो बेसिक, but unfortunately dextro and levo can only be found by experiment, ठीक है? तो theoretically क्या किया गया है, कॉन्फ़िगरेशंस निकालना सिखाया गया, कॉन्फ़िगरेशन। इवन तो मैं इसको ये नहीं बता सकता डेक्स्ट्रो या लेवो, लेकिन इसका अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दूं
तो इसका जो मिरर इमेज होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली अलग आएगा, राइट? सो बेसिकली नाउ वी विल स्टडी कॉन्फ़िगरेशंस. Rasal, Configuration. ini avne. Rasal. कॉन्फ़िगरेशन. तो एक बार जरा ये आप चाहिए तो कॉपी कर लो, बिकॉज अभी थोड़ी देर बाद जब आप कॉन्फ़िगरेशंस लर्न कर लोगे तो ये आंसर्स आपको मैच करने चाहिए. तो फटाफट जरा इनको आप एक बार कॉपी कर लो. And then you write configuration heading. Yes, sir. कॉपी कर लिया? हाँ सर. Yes, sir. Now you write configuration heading और उस पे नोट लिखिएगा the arrangement of atoms or groups, the arrangement of atoms or groups in the space, the arrangement of atoms or groups in the space that characterizes a stereoisomer is called its configuration. Its configuration. Guys, configurations के लिए stereo isomers के लिए optical isomerism में two configurations were proposed. एक को बोलते हैं relative configuration. Relative configuration. ये काफी पुराना है. Nowadays we use absolute configuration, वो भी डिस्कस करेंगे. रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं DL नॉमेनक्लेचर. याद रखना ये कैपिटल D कैपिटल L है. अर्लियर वी स्टडीड स्मॉल d स्मॉल l. DL nomenclature. 2-3 points you write here. When no method was available, when no method was available, when no method was available to determine
to determine the actual arrangement of atoms or groups in the space सर टू डिटरमाइन के बाद when no method was available to determine the actual arrangement of atoms or groups in the space, of a stereoisomer glyceraldehyde. You can see glyceraldehyde was taken as an arbitrary standard glyceraldehyde was taken as an arbitrary standard to study the configurations of various stereoisomers. स्टैंडर्ड के बाद क्या बोला आपने? Glyceraldehyde was taken as standard. नहीं मैंने क्या बोला? हाँ, arbitrary standard and configuration of various stereoisomers were studied with respect to this. कुछ ऐसा बोला है मैंने. Further इसमें लिखिएगा another point. Glyceraldehyde having OH group. Glyceraldehyde having OH group on the right and hydrogen atom on the left. And the hydrogen atom on the left was arbitrary given the configurational symbol D. Was Sir, given. can you repeat? I said glyceraldehyde having OH group on the right and H on the left was arbitrary given the configurational symbol D. सामने देखो, was given the configurational symbol D. चाहिए तो इसको कॉपी कर लो. फर्दर लिखिएगा mirror image of D. Mirror image of D, that is OH on the left and H on the right, was
given the configurational symbol L, याद रखना ये कैपिटल D और कैपिटल L है. ये भी आप लिख लीजिएगा. हो गया. Yes, sir. Yes, sir. ऑर्डर इसमें Yes, लिखिएगा. sir. A stereoisomer, a stereoisomer a stereoisomer which can be obtained from or converted into which can be obtained from or converted into D-glyceraldehyde will belong to D series. सर वो क्या था डीग्लिसरॉल्डिहाइड will belong to D series. D series मतलब D form. Any stereoisomer, next point, any stereoisomer which can be converted into or can be obtained from L-glyceraldehyde will belong to L series. Will belong to L series. तो मेरा कोई नेटवर्क प्रॉब्लम था. ये पॉइंट और पिछला पॉइंट एक और बार रिपीट कर सकते हैं सर? लास्ट वाला पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं. एनी स्टीरियोआइसोमर which can be obtained from or converted into L-glyceraldehyde will belong to L series.
गाइस इसी तरह से एक और आप ले सकते हैं स्टैंडर्ड उसमें, लेट मी राइट COH NH2 H CH2OH, इसको कहते हैं, और इसी का मिरर इमेज। गैस कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तुम्हें D और उसके बाद ब्रैकेट लिखा होगा और ब्रैकेट में होगा लेट अस से प्लस, राइट, एंड देन दे विल राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड। इसी तरह से दे मे गिव यू दिस, राइट, और फिर नेम द कंपाउंड। ये जो D है ये इंडिकेट कर रहा है कि वो बेसिकली DL नॉमेनक्लेचर का D फॉर्म है, और ये जो प्लस है यहाँ पर, ये प्लस इंडिकेट कर रहा है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। याद रखना, पॉजिटिव रोटेशन। और इस वाले में भी उसी तरह से, यहां से तो पता चल रहा है कि वो D फॉर्म है। ये जो माइनस अंदर लिखा हुआ है दिस इंडिकेट्स कि वो लेवो रोटेटरी है। ठीक है, ऑल्दो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत नहीं आएंगे, बट फिर भी वी नीड टू लर्न दिस। ये एक कॉन्फ़िगरेशनल वे है। तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इफ आई राइट लाइक CHO जैसे ये कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये कंपाउंड में अगर तुम्हें ये पता करना है कि ये DL नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से D फॉर्म है कि L फॉर्म है, देन जस्ट लुक एट द बॉटम। इसका बॉटम में देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, लेट मी शो यू, दिस पार्ट विल डिसाइड द DL नॉमेनक्लेचर। ये बॉटम मोस्ट। तो अगर इसमें OH राइट साइड में है तो उसको आप D फॉर्म बोलोगे, अगर वो लेफ्ट में बिलोंग है तो उसको आप L फॉर्म बोल दोगे। ठीक है, तो उसको एक बार ड्रॉ कर लो आप। सर अगर डी और एल कोई भी नहीं है तो कैसे पता चलेगा? DL कोई भी नहीं है मतलब? अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट में OH हो ही नहीं तो अपने वो स्टेटमेंट देखो लिखा है ना लास्ट में, a stereoisomer which can be obtained or converted into। तो वो स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, तो अगर वो प्रिपेयर किया गया तो वो चीज वैसे ही देगा वो आपको। ठीक है, Yes. ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। सर वो आपने ऊपर पहले कंपाउंड के नीचे डी के बाद क्या लिखा है, सिराइन ऐसा कुछ तो? ये यस सर। दिस द नेम।
जैसे अच्छा, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड नेम एग्जैक्टली क्या है सर? SERIN। ओके ओके सर। तो सर ये मैं लास्ट एग्जांपल आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? लास्ट वाला एग्जांपल एक्चुअली ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने लिखा है। इफ यू रिकॉल अर्लियर आल्सो आई गेव यू द फॉर्मूला, एग्जैक्टली इसी तरह से लिख के दिया था, बट तभी अपने को फिशर प्रोजेक्शन वगैरह नहीं मालूम है ना। आज की डेट पे फिशर प्रोजेक्शन मालूम है। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये एक्चुअली डी ग्लूकोज है। तो इस डी ग्लूकोज कैसे पता चला कि ये डी फॉर्म है? तो यहाँ पर बहुत सारे OH OH हैं, बट यू हैव टू लुक एट द बॉटम पार्ट। बॉटम वाले पार्ट में देखो, लास्ट में CH2OH लिखा हुआ है, उसके जस्ट ऊपर वाला कार्बन देखो, उसके लेफ्ट में H है, राइट में OH है। सिंस राइट में OH आ गया, इसीलिए हमने इसको डी बोल दिया है। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है। सर हमने फिर सेराइन के केस में कैसे डिटरमाइन करा? बेसिकली वो भी स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिया गया है। हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे अल्फा अमाइनो एसिड्स, बायोमोलिक्यूल करके चैप्टर आएगा। ये आपके बैच में सब बता रहा हूँ, बाकी जगह ये बताना भी नहीं है। अल्फा अमाइनो एसिड्स, जैसे एग्जांपल मैं आपको लिख कर दूं, लाइक COOH NH2H, यहाँ पर लिख देते हैं HOH, और यहाँ लिख देते हैं CS। ठीक है। अभी किसी ने पूछा है कि ये डी फॉर्म है कि ये एल फॉर्म है, तो इसमें केवल आपको ये देखना है कि ये जो NH2 है, ये क्योंकि अल्फा अमाइनो एसिड्स है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि आपको NH2 अल्फा पोजीशन पे ही मिलने वाला है। तो बेसिकली हम ये वाला कार्बन हर बार चेक करेंगे, और इसमें आपको दिख रहा है कि NH2 राइट हैंड साइड पे है, इसीलिए ये किसको बिलोंग करेगा? ये डी सीरीज को बिलोंग करेगा, इसके लिए हम लिखेंगे डी। ठीक है। यस सर। नाम से ही पता चल रहा है अल्फा अमाइनो एसिड्स है, तो NH2 आपको अल्फा पोजीशन पे ही मिलेगा। Can I erase this? यस सर। गाइस, कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर दिया हो, याद रखना जैसे इसके लिए ही है, वी नेवर राइट दिस एज लाइक, मैं अगर इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो अगर कहीं नॉमेनक्लेचर में ऐसा लिखा हो 2D 3L 4D 5D, तो दैट इज रॉन्ग। ये ओवरऑल केवल एक ही आप डीज को बोलोगे, एंड दैट इज डिसाइडेड बाय दिस बॉटम मोस्ट पार्ट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये बॉटम मोस्ट पार्ट जो है, वो इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के बॉटम मोस्ट पार्ट से मैच करता है। ठीक है। तो जिसके बेसिस पे आपको DL लिखना है। यू कैनॉट से 2D 3D इस तरह करके नहीं लिखना है, केवल एक ही डी इसमें रिप्रेजेंट करते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है। नाउ यू राइट एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, इसको हम लोग RS नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। RS नॉमेनक्लेचर। रिकॉल करिए, हम लोग ने EZ नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, और एक्चुअली दिस RS नॉमेनक्लेचर इज आल्सो बेस्ड अपॉन दैट CIP और SIP कन्वेंशन। वही जो हम लोग ने वहां पर भी लिखा हुआ था। इफ यू रिकॉल दीज नेम्स, ये हमने वहां पर भी लिखा हुआ है। सो प्लीज राइट रूल्स। रूल नंबर 1,
Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. The four different groups attached to the chiral carbon atom are assigned a priority order. Based on CIP रूल. याद है ना सीक्वेंस रूल जो हमने लिखा था पहले एटॉमिक नंबर के बेसिस पे. Based on atomic number, याद है atomic number of directly connected atom. And if directly connected atom same, then we check the next atom. इस तरह से चलता रहेगा. और double bond अगर कहीं पर लिखा हुआ है, so to decide priority, we'll consider that same atom is connected with, like here in this case oxygen is connected to carbon 2 times with single bond. ऐसा नहीं. और isotopes हो गया, then mass number will decide the order. Rule number 2. Rule number 2. The formula is rotated. The formula is rotated so that Repeat first. the formula is rotated so that formula मतलब model. Formula is rotated so that the group with the lowest priority. पहले सारे rules लिख लेते हैं फिर बात करते हैं. So that the group with the lowest priority, is directed away. Lowest priority मतलब 4 वाला. Is directed away from the observer. Directed away from the observer. The arrangement of the remaining 3 groups is observed in decreasing order of their priorities. In decreasing order of their priorities. In looking so, if the eye travels
in a clockwise direction. I moves in a clockwise direction. Moves in a clockwise direction. The configuration is specified as R. ये लैटिन वर्ड के बेसिस पे लिखा गया. लैटिन वर्ड में rectus होता है. It means right. R, Latin word, rectus, it means right. Configuration is specified as R, capital R. And if the eye moves in the anti-clockwise direction, if the eye moves in the anti-clockwise direction, the configuration is specified as S, capital S. इसमें भी लैटिन वर्ड के बेसिस पे जाएंगे. Sinister, which means left. Configuration is specified as S. The lowest priority group, that is 4, is positioned at the bottom. The lowest priority group, that is 4, is positioned at the bottom and away from the observer by interchanging the groups bonded to chiral carbon atom. By interchanging the groups bonded to chiral carbon atom. This interchange operation is always done in pair. Look here, means even number of changes. Even number of interchanges. To avoid a configurational change. To avoid a configurational change. Next rule you can write. If there are
if there are more than one chiral centers, if there are more than one chiral centers, then the same procedure is applied. The same procedure is applied to each of them separately. एक छोटा सा नोट लिख लीजिएगा यहाँ पर. The direction of the rotation of plane polarized light, the direction of the rotation of plane polarized light the direction of the rotation of plane polarized light has nothing to do with RS notation. Has nothing to do with RS notation. मीनिंग लास्ट नोट का ये है कि यू कैनॉट से आर इज डेक्स्ट्रो. आर कैन बी डेक्स्ट्रो, कैन बी लेवो. सिमिलरली एस कैन बी डेक्स्ट्रो, एस कैन बी लेवो. आर एस नॉमेनक्लेचर का डेक्स्ट्रो लेवो से कोई लिंक नहीं है. ठीक है गाइस, एक बार आप सारे रूल्स आर एस वाले रीड कर लो, देन आई विल टेक एग्जांपल. बहुत आसान है, आप रूल्स पढ़कर कंफ्यूज मत होना, जस्ट रीड कर लो. ठीक है. Guys, have you read the rules? Yes, sir. Sir. Let me take the example.
गाइस ये फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले एज आई टोल्ड यू क्या करना होता है, प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो प्रायोरिटी में ऐसे ही देखने से पता चल रहा है, आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि COH है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया है। यू हैव टू चेक द डायरेक्टली कनेक्टेड एटम, हियर ऑक्सीजन, हियर कार्बन, हियर कार्बन, हियर हाइड्रोजन। So of course this oxygen will get first priority. And out of these two carbon atoms, this carbon of COH will get second priority. ये third priority, ये fourth priority. तो अपने को ये इसको सेपरेट कर लो, 1 2 4 3, ये प्रायोरिटी आ गया। बट हमने रूल लिखा हुआ है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है ना, इसको बॉटम पे लेकर आना है, हाँ। तो बॉटम पे लेकर आना है, तो उसके लिए कैसे लेकर आए, क्योंकि ये तो 2 डायमेंशनल, इसको ऐसे घुमा नहीं सकते। 3 डायमेंशनल होता तो हमारा वो जो लिखा हुआ है फॉर्मूला इज रोटेटेड, तो यहाँ रोटेटेड के बजाय एक्सचेंज वाला मेथड यूज करेंगे। एक्सचेंज वाला मेथड कहता है कि आपको मिनिमम 2 एक्सचेंजेस करने हैं, because even number of exchange, if you do odd number of exchanges then configuration will change। इसका मतलब अगर ये पहले लेटर से R रहा होगा और हमने गलती से इसमें चेंजेस कर दिए, ये इंटरचेंजेस कर दिए, तो R में बिकम S, तो आंसर गलत निकल आएगा। तो कितने एक्सचेंजेस इंटरचेंजेस करने हैं, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 और 3 को एक्सचेंज कर लेते हैं, बिकॉज 4 को तो नीचे आना ही है, और 1 2 को इधर कर लेते हैं। आप चाहो तो एक एक करके भी कर सकते हो, पहले इसको करो और फिर उसको किसी और के साथ कर दो। सो 4 विल कम हियर, 3 हियर, 2 हियर, 1 हियर। नाउ 4 को आप बंद कर दो, आंखों से केवल आप 1 2 3 देख लो, 1 2 3, ये आंसर हो गया R। तो दिस इज एक्चुअली R कॉन्फ़िगरेशन। Any confusion? Any doubt? सबको क्लियर No, है? yes sir. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ, किसी को अगर थोड़ा बहुत भी अनक्लियर रह गया। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। जैसे इधर मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया OH, हियर आई एम राइटिंग H, हियर आई एम राइटिंग OH, here I am writing H, here I am writing COH, here I am writing COH, right? अब इसमें 2 chiral carbon atoms हैं, so you have to be little careful because separately you have to deal with 2। तो मेरे लिए ये chiral carbon है, मैं इसको थोड़ा अलग लिख देता हूँ ऐसे। मेरे लिए ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये हाइड्रोजन है, डायरेक्टली कनेक्टेड। तो लेट मी असाइन द प्रायोरिटी, इसको 1 दे देंगे। ये COOH वाला है बिकॉज ऑक्सीजन वाला है, इसको सेकंड मिल जाएगा, इसको थर्ड दे देंगे, और इसको फोर्थ दे देंगे। फिर एक्सचेंज वाला, इसमें इंटरचेंजेस किया, 4 बॉटम पे लाना था, नीचे ले आए, इसलिए एक और एक्सचेंज यहाँ दे दिया। अब यहाँ पर 1 2 3 तुम्हें खेलना है, 1 2 3 खेलोगे तो ये हो जाएगा R, यानी ये R कॉन्फ़िगरेशन। नीचे वाले के लिए सेम मैनर में, इधर H है, इधर ऑक्सीजन है, इधर कार्बन है, कार्बन है, प्रायोरिटी दे दो। ये 4 हो गया, 1 हो गया, इसको 2 दे देंगे, ये 3 देंगे। 4 बॉटम पे लाना था तो यहाँ ले आए, तो मेरे को इसको भी एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको किया तो ये भी R निकल गया। तो इसका अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो यू हैव टू राइट दिस एज 2R, 3R, ऐसा इसका कॉन्फ़िगरेशनल नेमिंग करेंगे, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए कि मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, COOH, OH, OH, H, H, CO। इसी तरह इसके लिए भी करेंगे, आप लोग करके देखो। देखो मैं इधर लिख देता हूं, आप चेक करो क्या यही आता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन R और इसका कॉन्फ़िगरेशन S, ये पूरा कॉपी कर लो और इसके लिए एक बार चेक कर लो। Anyone having any problem, please ask, huh?
Yes, sir. RS. आ गया, मैच कर लिया ना? Yes, sir. RS. चलो, वेरी गुड। सबने कॉपी कर लिया वॉट एवर रिटन ऑन स्क्रीन? No, sir. सर तो वो 2R, 3S हो जाएगा। यस बेटा। अच्छा ठीक है। Yes, sir. Done. You all have copied? Yes, sir. गाइस, ये मैजिकल जो नॉमेनक्लेचर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको जरा यूज करते हैं। हम लोग ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन लिखा था जिसका आंसर तुम लोगों ने गलत दिया था। अब देखो, उसी मैजिक को यूज करते हैं यहाँ पर। इफ आई आस्क यू टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, व्हाट विल यू डू? कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्रायोरिटीज, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। फिर फटाफट एक्सचेंज ऑपरेशन लगा दो, क्योंकि 4 तो नीचे ही लाना है। 4 हो गया, 3 हो गया, इधर आप 1 ले लो, इधर 2 ले लो, तो ये मेरे ख्याल से आर हो गया, राइट? इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। फिर से एक्सचेंज ऑपरेशन, 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, इधर 1 इधर 2, तो ये 1 2 3 मतलब ये आर, सॉरी ये एस हो गया, है ना? इसको लिख दो 1, सॉरी ये 1, 1 2 3 4। एक्सचेंज ऑपरेशन कर दो, ये हो जाएगा 4 में, क्योंकि अब आप इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। 4 1, इधर आएगा 3, इधर आएगा 2, तो ये मेरे ख्याल से ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? आर हो गया। ठीक है, ये आर हो गया, राइट? अब आप देखो, फटाफट आपको पता चल रहा है कि ये फर्स्ट एंड सेकंड, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक आर है एक एस है। तो अगर आर मान लो डेक्स्ट्रो है, मैं कह रहा हूँ आर लेवो है लेटेस्ट से, तो डेफिनेटली एस डेक्स्ट्रो हो जाए। ये जो भी होगा डेक्स्ट्रो होगा तो ये लेवो हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 एंड 2 एनहांसोमर्स हो गए। 1 एंड 3 को देखो, ये आर है वो भी आर है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आइडेंटिकल हो गए। 2 3 को देखो, ये एस है वो आर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एनहांसोमर्स। सेकंड्स में आंसर। क्या आप समझ में आया आप लोगों को? ये हाँ फटाफट इसको भी कॉपी कर लो।
डन। इरेज कर दें इसको। हाँ सर। हाँ सर। गाइस इफ यू सी 1 2 3 ये 3 कंपाउंड्स हैं। बिलीव मी, अगर ऐसा दिया हुआ है तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि 1 और 2 रिलेशन में एनेंशियोमर्स हैं, आइडेंटिकल हैं कि डायस्टीरियोमर्स हैं। ठीक है ना, तीनों ये अब 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, ये सब रिलेशन आप आराम से लिख पाओगे। देखने से ही पता चल रहा है कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इनका OH एक तरफ है जबकि इसमें OH अलग अलग साइड में, नॉन सुपर इम्पोजेबल और मिरर इमेज भी नहीं है, तो ये स्ट्रेट डायस्टीरियोमर्स हो गए। राइट। 2 एंड 3 को देखोगे, 2 एंड 3 एक्चुअली मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल है। देखते ही पता चल रहा है एनेंशियोमर्स हैं। 1 एंड 3 देखोगे डायस्टीरियोमर्स हैं। अभी लेकिन अगर ये ऐसा दिया होता, ये ऐसा दिया होता, सो बिलीव मी डायरेक्ट मेथड आप फेल हो जाता। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन जो है वो एज पर द रूल नहीं है। वर्टिकल लाइन COH वाला होना चाहिए, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कर सकते हैं आराम से। कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल लो। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, ये 1 पोजीशन होगा कॉन्फ़िगरेशन वाइज, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। एक्सचेंज ऑफर कर दो यहाँ पर, इस यहाँ 4 ले आओ, यहाँ 3 ले आओ, इधर 2 है, इधर 1 हो जाएगा। ये 1 2 3 का मतलब ये R हो जाएगा, है ना। इसी तरह इसको कॉन्फ़िगरेशन दे दो, यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। एक्सचेंज ऑफर कर दो, 2 यहाँ 4 कर दो, यहाँ 2 कर दो, इधर 1 और 3 कर दो, तो ये 1 2 3 आ जाएगा। 1 2 3 ये बेसिकली S है। राइट। इसको देखोगे, सर ऊपर वाला भी ऐसा आएगा ना? हाँ सर, 1 एंड 2 भी सर इंटरचेंज कर। ऊपर वाला भी S रहेगा ना? पक्का? सर 1 एंड 2 भी इंटरचेंज कर। हाँ देख लो, ये 1 हाँ लिखा है सर मैंने, ऐसी है। गलती कर दी मैंने। 1 2 3 4 है, तो 3 और 4 एक्सचेंज किया। अच्छा, ये 2 और 1 एक्सचेंज करना भूल गया, 1 2, तो ये बेसिकली 1 2 3 मतलब ये S हो जाएगा। अभी सही है। यस और इस वाले को देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 एक्सचेंज ऑफर कर दो, 4 3 2 1, तो ये 1 2 3 R हो गया, है ना। इस तरह इसका निकालोगे 1 2 4 3, ये आएगा S। गाइस
देखो देखते ही पता चल रहा है कि ये एस से आर हो रहा है, लेकिन ये एस से एस ही रह गया। याद रखना, अगर तुम्हारा एक कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन है आर 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 आर, तो और तो दूसरे में उसको क्या हो जाना चाहिए, एस 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 एस, देन एंड ओनली देन इसको हम बोलेंगे इनैंशियोमर। वरना अगर आर 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 फर्स्ट में है और सेकंड में ये वापस आर 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 हो जाता है, तो इसको बोलेंगे आइडेंटिकल। रेस्ट जो भी होगा, रिमेनिंग जो भी होगा, वो आएगा डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर्स मतलब लेटर से 3 का आर एस हो गया, लेकिन चौथे का आर आर ही रह गया, देन दैट those two stereoisomers will be diastereomers. Like here, S becoming R, but this S is remains S. That is why these two are actually diastereomers. Do you have any problem? Any difficulty? सर अगर आर एस से एस आर हुआ तो फिर भी इनैंशियोमर ही होगा ना? हाँ, अगर एक आर है दूसरा एस था और फिर एस आर हो गया, मतलब आर से एस हुआ और नीचे वाला हाँ एस से आर हो गया, तो नहीं शो चेंज हाँ होना चाहिए। इनैंशियोमर। और हाँ फॉर सही। विद रिस्पेक्ट टू कायरल कार्बन है, यानी लेफ्ट में जो कायरल चेक करे हो दैट शुड बी सेम राइट हैंड साइड में कायरल। डन। हाँ 1 minute. नहीं सर, एक मिनट। यस हो गया? Yes. वेरी गुड। अब इतना पढ़ने के बाद एक क्विक मेथड लिख लिया। गाइस इन दिन दोनों को देखो आप। या मैं ऐसा भी लिख,
गाइस अभी क्विक मेथड में क्या करते हैं हम लोग, रादर देन फाइंडिंग आर एस नॉमेनक्लेचर, हम लोग इसको आर आर एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लिया है ना। रिलेशन फाइंड आउट करना है 1 और 2 के बीच में या 1 और 3 के बीच में, जस्ट एज्यूम वट एवर गिवन, जस्ट एज्यूम आर आर, और फिर चेक करो इस कायरल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर पहली चीज तो ग्रुप्स देखो सेम है कि नहीं है, COH OH H COH OH H सेम है ना। अभी देखो एक्सचेंज कितना हुआ है, इंटरचेंज देखो, COH यहाँ था ऊपर गया, इसका मतलब 8 इंटरचेंज हुआ, H अपनी जगह पे, और 1 इंटरचेंज का मतलब है, 1 इंटरचेंज का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज्ड, ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, तो इसको एस कर देंगे। वी डू नॉट, हमने निकाला नहीं है आर, हमने एज्यूम किया, तो यहाँ पे एजम्पशन वाला पॉइंट से निकला है ये। इसको देखो ये आर है, इधर कोई एक्सचेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, आर विल रिमेन आर, इसका मतलब है कि दीज टू आर डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, अब जैसे इसको देख लो, पहले वाले के कंपैरिजन में देखो, आर था पहले, COH देखो अपनी जगह पर है, HOH का एक्सचेंज हुआ है ना, सो आर विल रिमेन आर। क्या समझ में आया, आर विल रिमेन आर, और ये तुम्हारा वैसे ही था, इसका मतलब है कि ये आर आर का मतलब हो गया 1 और 3 के बीच में रिलेशन सेट होगा आइडेंटिकल, राइट। एक बार आप लोग देख लो, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू प्लीज आस्क। एज्यूम करना है, then with respect to each chiral carbon atom you have to see the interchanges. If odd number of interchanges, configuration will change. If even number of interchanges, configuration will remain same, and then check the relation. सर थर्ड के ऊपर वाले में तो एक ही इंटरचेंज हुआ ना? क्या हाँ सर, एक ही हुआ ना थर्ड वाले में? थर्ड के ऊपर वाले में। अच्छा ये यहाँ सॉरी सॉरी, ये एच और OH का। हाँ तो मुझसे गलती हो गई, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। देखो आपके अंदर कितना टैलेंट आ गया अभी, मिस्टेक मेरे से हुई, तो ये आर से क्या रहेगा, एस हो जाएगा। ये वैसे ही है ना, हाँ इधर कोई चेंज नहीं हुआ, तो बेसिकली ये दोनों भी क्या हो गए, डायस्टेरियोमर्स है ना। लेकिन अगर 2 3 देखोगे ये आइडेंटिकल हो गए। ठीक है, चलो वेरी गुड। हाँ डन। यस सर।
Guys, this is flying wedge representation. इसमें भी आप आरएस नोमेनक्लेचर निकाल सकते हो. इसमें भी सेम मैनर में करना है आपको. कुछ नहीं, आप केवल प्रायोरिटीज डिसाइड कर लो यहाँ पर, ठीक है ना. उसके बाद एक्सचेंज ऑपरेशन कर दो. और एज वी नो, यहाँ पर जो ब्रोकन वेज वाला है ना, ब्रोकन वेज, वो एक्चुअली फोर्थ प्रायोरिटी पे होना चाहिए. बिकॉज हमको बिलो द प्लेन पे डालना है ना. अगर आप पहला स्टेटमेंट ये रूल्स पढ़ेंगे आरएस नोमेनक्लेचर में, तो वो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो बॉटम पे लेकर ही इसीलिए जाते हैं फिशर प्रोजेक्शन में, बिकॉज वो बिलो द प्लेन वाले केस में आता है, बिलो द प्लेन. तो आप इसको ब्रोकन वेज पे लेकर जाना एंड देन चेक 1 2 3 एंड गेट द आंसर. फटाफट इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ. एस है क्या? आर आ रहा है. सर आर आ रहा है. आर आ रहा है सर. एक ही. हाँ, वेरी गुड. यस सर. सबको आ गया. सर आ रहा. सभी को आ गया. हाँ सर. हाँ वेरी सर. गुड. गाइस, एक बार आप सारा गो थ्रू कर लीजिए व्हाट एवर वी डिस्कस्ड टुडे. फटाफट एक बार go through कर लीजिए. बहुत सारी चीजें आज हमने डिस्कस कर ली हैं. सर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो? इसमें ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, और ये सेकंड प्रायोरिटी हो गया, ये थर्ड प्रायोरिटी हो गया, और ये फोर्थ प्रायोरिटी हो गया. ठीक है ना. अब एक्सचेंज करना है अपने को, क्योंकि ब्रोकन वेज पे आपका फोर्थ प्रायोरिटी होना चाहिए. सो 4 को नीचे ले आओ, थर्ड को ऊपर ले आओ. ठीक है. आप उसका 1 2 3 कर लो, जो भी आंसर है उसका उल्टा कर दो, या फिर क्या, दो एक्सचेंजेस एक साथ कर दो. ये 4 3 एक्सचेंज किया, 1 2 एक्सचेंज कर दिया, फिर 1 2 3 आप देख लो क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज जाएगा तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज तो एस हो जाएगा. आपको यहाँ पर फोर्थ वाले को लेकर आना है, कुछ भी हो जाए. उसके लिए आपको दो एक्सचेंजेस करने हैं यार. ओके सर, थैंक. Guys, all of you go through whatever we discussed today. If you have any doubts, please ask. तो मुझे वो एक्सचेंज वाला पार्ट बराबर से नहीं समझ में आया सर. क्या बेटा? तो वो एक्सचेंज कैसे करते हैं, वो वाला पार्ट समझ में एक्सचेंज नहीं आया. सीधे सीधे, ये तुम्हारा कार्बन था, 4 ऊपर था तो 4 को नीचे ले आए, ये लो. है ना. तो हमको 1 2 भी एक्सचेंज कर गया, करना पड़ा. तो इधर 2 कर दो, इधर 1 कर दो. ठीक है. फोर्थ को हम लोग देखते नहीं, हम केवल 1 2 3 रोटेट करते हैं. सर
सर वो एंटाइशोमर्स में सर सपोज लाइक आई हैव अ कॉन्फ़िगरेशन RSSR, ओके, RS है और दूसरे में और SR फिर है। दूसरा कंपाउंड में ऐसे है नहीं, एक तो लाइक तुमने 4 चेन, लाइक 4 कायरल कार्बन वाला। 4 कायरल कार्बन ऐसा बोल रहे हो? हाँ, तो उसमें RSSR है सपोज। हाँ सही, और SRRS है सपोज। SRR RR है S ऐसा बोल रहे हो? और S। हाँ, तो व्हाट कैन वी से अबाउट, हाँ इस पे एक्चुअली तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। होता क्या है मेनी टाइम्स, जैसे कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा ना RS, एक ध्यान से देखो तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये मेजो है, नहीं समझा? अच्छा, ये मेजो है। हाँ ऐसा समझा। भी हो सकता है कि पता चला कि दो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें मिरर इमेज तो दिख रहे हो, लेकिन पता चला एक R है और एक S है, और एक में S है एक R हो गया, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसी सिचुएशन जब आएगी ना, तो आपको मेजो चेक करना है। ऐसा ना हो कि ये मेजो हो, है ना। इधर भी आप चेक कर लेना, अगर मुझसे कोई भी गलती होगी तो पता चल जाएगी। यहाँ आप चेक कर लेना, ये मेजो हो जाएगा तो आइडेंटिकल बन जाएगा। एक बार यहाँ जरूर चेक कर लेना, हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हो गई हो इन एंशोमर्स लिखने में, इसको जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अगर RS है और दूसरा SR करके दिया है तो दोनों मेजो हो जाएंगे और वो आइडेंटिकल की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, इधर भी आप एक बार चेक कर लेना। वैसे तो ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बट अगर हो गया हो तो आप एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। एनी अदर डाउट्स हियर? नो सर। So next lecture will continue this, और उसके बाद फिर आप बुक लेट। चलो बाय। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर।